Hello students, good morning. How are you all? I think you all are fine. So let's start our today's lecture. In our last lecture, uh, I was give you two examples in a homework, and I think you completed that two examples. So let's start our next example number 6. So firstly, here the given inequality, which is 3x minus 4 by 2 greater or equal to x plus 1 by 4 minus 1. So firstly we take a LCM here. So what is the answer is x plus 1 minus 4 by 4. समझ आया, क्योंकि यहाँ पे 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और होल डिवाइड बाय 4. The next step is 3x minus 4 by 2 greater or equal to x minus 3 by 4, because plus 1 minus 4, that means minus 3. Now if we cancel or neglect the denominator of both sides of inequality, then we must multiply by the LCM of that two numbers. So what is the LCM of that two numbers? 2 and 4 is 4. So we multiply by 4 on both the sides. So we get here multiply by 4 and 2 2s are 4. So cancel out with 2. So 2 into 3x minus 4 greater or equal to, and here 4 both are cancelled. So we get x minus 3. That implies 2 is go inside and multiply, go inside of bracket and multiply by 3x and 4. So we get 6x minus 8 greater or equal to x minus 3. Now we observe that the larger x is a 6x. So we do all the operations here. That means on LHS side. So we get firstly we do a plus 8 on both the sides of inequality. So we get 6x greater or equal to x plus 5, because minus 3 plus 8, that means plus 5. Now subtracting by x on both the sides. So minus x on both the sides, we get the 6x minus x, that means 5x greater or equal to 5. Now dividing by 5, we get x greater or equal to 1. समझ में आ गया? चलो, therefore for all x where x belongs to capital R, the solution set is equals to curly bracket x where x greater or equal to 1 and x belongs to capital R. So the answer is close 1 comma infinitive, close 1 comma infinitive, क्योंकि आपकी जो x की वैल्यू है वो 1 इक्वल है या 1 से लार्जर नंबर, दैट मीन्स पॉजिटिव साइड जा रही है. सो नंबर लाइन पर ड्रॉ कर देते हैं. सो इतना ही हम नंबर लाइन लेंगे, बहुत ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है. ये यहाँ पे 0, ये यहाँ पे 1 2 -1 एंड -2. चलो इसको थोड़ा कम कर देते हैं, नंबर लाइन थोड़ा कम कर देते हैं. चलो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सो ये प्लस इन्फिनिटिव और ये माइनस इन्फिनिटिव. चलो दो नंबर कौन सा है, 1 है, तो 1 के ऊपर हम सर्कल कर देते हैं. चलो अभी 1 के जो RHS साइड है वो पॉजिटिव इन्फिनिटिव है और LHS साइड नेगेटिव इन्फिनिटिव है, मतलब माइनस इन्फिनिटिव है. सो द आंसर इज x इज इक्वल्स टू 1 और ग्रेटर देन 1, मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, मतलब पॉजिटिव की साइड जा रही है. सो हम कहाँ दिखाएंगे हमारा सॉल्यूशन, सो ऑन पॉजिटिव साइड. सो दिस इज योर आंसर. और अब हमें क्या करना है, जो हमारा सर्कल है वो फिल करेंगे या नहीं करेंगे, बोलो. ग्रेटर और इक्वल टू है, दैट मीन्स स्टैक इनइक्वालिटी है, दैट मीन्स वी मस्ट फिल द सर्कल. चलो जो सर्कल में ड्रॉ किया उसके ऊपर हमारा आंसर हम लिख देते हैं x ग्रेटर इक्वल टू 1. चलो समझ में आ गया स्टूडेंट्स, इजी है ना? ओके गुड. Now the next sum is 6.120. The given inequality x by 2 greater or equal to 5x minus 2 divided by 3 minus
7x minus 3 whole divided by 5. Okay, firstly we take an LCM of RHS side. So we get x by 2 greater equal to, we multiply by 5 here and multiply by 3 here and whole divided by 15. So we get 5 into 5x minus 2 minus 3 into 7x minus 3 and whole divided by 15. That implies x by 2 greater equal to 5 go inside, 5 is go inside the bracket. So we get 25x minus 10 minus 21x and plus 9 whole divided by 15. That implies x by 2 greater equal to 25 minus 21, that means 4x minus 10 plus 9, that means minus 1 whole divided by 15. Now we multiply that number, which is the LCM of 15 and 2 on both the sides of inequality. So we multiply by 30 on both the sides of inequality. We get here 15x and greater equal to 2 into 4x minus 1. That implies 15x greater equal to 8x minus 2. Now we subtracting by 8x on both the sides of inequality. So we get 15 minus 8x, that means 7x greater equal to minus 2. Now dividing by 7 on both the sides. So x greater equal to minus 2 by 7, or we may write x greater equal to minus 0.28. Okay, in a decimal number. Why we take a decimal number? Because of we don't know, or we don't have any idea that the minus 2 by 7 we plot minus 2 by 7 on number line. where we plot. ओके, सो वी अपना हमको एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि माइनस 2 by 7 हम जो नंबर लाइन है उस पर कहाँ प्लॉट कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, इसलिए हमने उसका डेसिमल नंबर ले लिया। जैसे क्योंकि हमें एग्जैक्ट आइडिया समझ में आ सकता है कि माइनस 2 by 7 सपोज के 0 और 1 के बिटवीन में ही है, 0 और माइनस 1 के बिटवीन में ही है, ऐसा हमें एग्जैक्ट समझ में नहीं आएगा। ओके, जो अगर हमारा रेशनल नंबर होगा तो, और उसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया तो हमारा काम इजी हो जाएगा। चलो तो उसका आंसर लिख देते हैं। फॉर ऑल एक्स x belongs to capital R, the solution set is equal to curly bracket x, where x greater equal to minus 2 by 7 and x belongs to capital R. So the answer is close minus 2 by 7 and infinitive open, क्योंकि हमारी जो x की वैल्यू है वो minus 2 by 7 के इक्वल है या उससे बड़ा नंबर है। चलो उसको नंबर लाइन पर प्लॉट कर देते हैं। चलो इतना ही ले लेते हैं, नंबर लाइन इनफ है। चलो तो यहाँ पे 0, 1 and 2, similarly minus 1 and minus 2. This is plus infinitive side, this is minus infinitive side. So we have to observe that the minus 0.28 is here. So अगर हम आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे एग्जैक्ट बीच में माइनस 0.5 आएगा, और माइनस 0.5 0 के बीच में समथिंग यहाँ पे हमारा वो नंबर होगा जो हमें चाहिए था। चलो तो मैंने रैंडमली मैंने ले लिया कि माइनस 0.25 इधर होगा, तो उसका मैंने सर्कल बना दिया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस 2 by 7। चलो अभी उसकी वैल्यू क्या है, तो माइनस 2 by 7 से क्या है, एक्स की वैल्यू बड़ी है, मतलब पॉजिटिव साइड जा रही है, मतलब ये माइनस 2 by 7 है, माइनस 2 by 7, और उसका पॉजिटिव साइड मतलब उधर जाएगी, RHS साइड जाएगी, LHS साइड नहीं जाएगी। तो उसका सॉल्यूशन सेट कैसा दिखेगा, so this is your final answer, and here I write x greater equal to minus 2 by 7। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ओके, इजी है ना? हाँ, अभी एक मेन काम हमारा बाकी था कि हमारी जो इनइक्वालिटी है वो स्लैक इनइक्वालिटी है, मतलब जो सर्कल है वो भी हम फिल करेंगे। हाउ द सम इज कंप्लीट। ओके, चलो गुड। Okay students, the next sum is exercise miscellaneous exercise 6, 7th sum, 5x plus 1 greater than minus 24 and 5x minus 1 less than 24. So students, you have to see that in this example we have given two inequalities.
ओके, चलो तो ऐसे एग्जांपल में हमें सॉल्व कैसे करना है वो हम समझ लेते हैं। तो ऐसे एग्जांपल में सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों इनइक्वालिटी को इंडिविजुअल आपको सॉल्व कर देना है। ओके, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। द गिवन इनइक्वालिटीज 5x + 1 greater than -24 एंड 5x - 1 लेस देन 24। चलो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये +1 को यहाँ से निकालना है, सो -1 करेंगे, -1 ऑन बोथ द साइड, सो वी गेट 5x greater than -25। कैसे -25? बिकॉज ऑफ -24 एंड -1, दैट मीन्स -25। एंड सिमिलरली हियर वी गेट +1 ऑन बोथ द साइड, सो वी गेट 5x लेस देन 25, क्योंकि यहाँ पे -1 + 1 0 और उधर 25 + 1 दैट मीन्स 24 + 1 दैट मीन्स 25। Dividing by 5 on both the sides, so we get x greater than -5, and here also dividing by 5 we get x less than 5। चलो तो मुझे एक दो रिजल्ट्स यहाँ पे मिले, पहला रिजल्ट ये और दूसरा रिजल्ट ये। चलो अब मैं क्या करूँगा, दोनों रिजल्ट को ऑब्जर्व करूँगा। दैट मीन्स फ्रॉम 1 and 2 we get, चलो अभी दोनों इनइक्वालिटी को हम समझते हैं। सबसे पहले इनइक्वालिटी में क्या है, तो x ग्रेटर देन -5 है, इसका मतलब कि x की वैल्यू -5 से लार्जर नंबर है, मतलब पॉजिटिव साइड। समझ में आ गया? सपोज मैं -5 हूँ तो x की वैल्यू क्या है, तो सब उधर जा रही है, पॉजिटिव साइड, बराबर। चलो दूसरे में क्या है, x लेस देन 5। सपोज मैं 5 हूँ अभी, बराबर, और x की वैल्यू 5 से क्या है, लेस नंबर है, मतलब स्मॉलर नंबर, मतलब ये मैं 5 हूँ और मेरा स्मॉलर नंबर मतलब नेगेटिव साइड जाएगी ना, बराबर। -5 है उससे बड़ी है और 5 है उससे छोटा है, बराबर। मतलब एक में वैल्यूज क्या है, तो -5 से लार्जर नंबर है और दूसरे में 5 से स्मॉलर नंबर है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, क्या होगा, तो 5 और -5 दोनों के बीच में आई, बराबर, क्योंकि 5 से छोटी वैल्यू, बराबर, मतलब नेगेटिव साइड जाएगी। कहाँ तक जाएगी, तो -5 तक ही जाएगी, क्योंकि एक में x की लिमिटेशंस आ जाती है। कहाँ तक आ जाती है, तो -5 तक, और -5 से स्टार्ट होगी, पॉजिटिव साइड जाएगी, पर कहाँ तक जाएगी, 5 तक ही जाएगी, क्योंकि 5 इज अ लिमिट। समझ में आ रहा है? अभी दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों इनइक्वालिटी को मिक्सचर में डाल देंगे, बराबर, और जो सॉल्यूशन बाहर निकलेगा ना वो हम देखते हैं क्या होगा। तो देखिए फ्रॉम 1 and 2 वी गेट -5 लेस देन x लेस देन 5। समझ में आ गया? आपकी जो x की वैल्यू है -5 से बड़ी है और 5 से कैसी है, छोटी है, बराबर। तो दोनों को हम साथ, दो इनइक्वालिटी को हम मर्ज कर देंगे, बराबर, दोनों को साथ कर देंगे, तो हमें एक नई इनइक्वालिटी मिलेगी जो डबल इनइक्वालिटी होगी। वो क्या होगी, ऐसी होगी। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, वो कैसी होगी, डबल इनइक्वालिटी वाली होगी। और इसका मतलब क्या है, तो जो आपकी x की वैल्यू है वो -5 से स्टार्ट हो रही है और 5 तक जा रही है, बराबर, और उसके बीच में तैर रही है, बराबर, उसके बीच में तैर रही है, लाइज कर रही है। ओके, सो ये हो गया हमारी लिमिट। यहाँ पे x की वैल्यू -5 से बड़ी है और यहाँ पे x की वैल्यू 5 से छोटी है। इसका मतलब हमारी जो x की वैल्यू है वो -5 और 5 के बिटवीन है। एंड दूसरी बात, 5 एंड -5 वैल्यू नहीं है पर उसके बिटवीन है, क्योंकि स्ट्रिक्ट साइन है इसलिए। Therefore, the solution for all x where x belongs to capital R, the solution set is equals to curly bracket x where -5 less than x less than 5 and x belongs to capital R. So final answer is open -5 5। चलो अब इसका हम नंबर लाइन पर ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। तो थोड़ा नंबर लाइन थोड़ा बढ़ा लेंगे। ओके, चलो अभी हम नंबर्स ले लेते हैं। कहाँ तक लेना है, 5 और -5, दैट मीन्स 6 और -6 तक ले लेते हैं, एक दो ज़्यादा ले लेते हैं। सो हियर 0 1 2 3 4 5 and 6, this is plus infinitive, and similarly we take negative side, -1 -2 -3 -4 -5 and -6, this is नेगेटिव साइड, दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटिव। चलो नंबर लाइन ड्रॉ हो गई। अब हमें क्या करना है, जो हमारे दो डिजिट्स हमें डबल इनइक्वालिटी में दिख रही है, कौन कौन सी, 5 और -5, दोनों के सर्कल हम ड्रॉ कर देते हैं। सो ये हो गया हमारा 5 वाला सर्कल और ये हो गया हमारा -5 वाला सर्कल। चलो दूसरा काम भी हमारा कंप्लीट हो गया।
चलो अभी हमारे x की वैल्यू 5 और -5 के बिटवीन तैर रही है, बराबर, उधर से उधर हो रही है, लाइज कर रही है, तो उसके बीच में हम सॉल्यूशन हमारा दिखा देते हैं। तो कैसा होगा हमारा सॉल्यूशन? ऐसा होगा। चलो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, बराबर, ये 5 और -5। अभी हमारा जो नेक्स्ट वर्क है वो क्या है कि जो दोनों सर्कल है हम फिल करेंगे या नहीं? बोलो। ऑब्वियसली नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बोलो आंसर। यस एग्जैक्टली, बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्ट साइन है इसलिए। चलो अभी लास्टली हमें यहाँ पे सिर्फ हमारा आंसर लिख लेना है, तो -5 लेस देन x लेस देन 5। चलो समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे हमारा सम्स कंप्लीट होता है। सबसे पहले हमें 2 इनइक्वालिटी क्वेश्चन में दिए थे, उन दोनों इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व किए, 1 और 2 रिजल्ट नंबर दे दिया, और फ्रॉम रिजल्ट 1 and 2 वी गेट, मतलब दोनों इनइक्वालिटी को हमने क्या किया, तो एक मिक्स करके और मर्ज करके एक डबल इनइक्वालिटी हमने क्रिएट की। और वो कैसी दिखी हमें? जो हमारे x की वैल्यू है वो -5 से 5 के बिटवीन मिलेगी, बराबर। चलो उसका तो हमें सॉल्यूशन आंसर कैसे लिखना है वो हमें तो पता ऑलरेडी है, क्योंकि हमने आगे डबल इनइक्वालिटी वाला हमने सम्स किए, उसमें हमने आंसर लिखे थे। चलो उसके बाद हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया, नंबर्स उस पर डिनोट किए, और कहाँ से कहाँ तक सॉल्यूशन होगा वो हमने बता दिया, बराबर। और जो सर्कल थे दोनों के 5 और -5 के वो हमने फिल नहीं किए। क्यों नहीं किए? बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो हमारी इनइक्वालिटी है वो कैसी है? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, इसलिए। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? एकदम शांति से देख लीजिए, शांति से ऑब्जर्व करके समझ लीजिए, ओके? समझ में आ जाएगा, इजी ही है, ओके, गुड। चलो हमारा नेक्स्ट सम है मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 का 10th सम है। ओके, आपको क्वेश्चन होगा कि अभी हमने 7th तक किया था, तो डायरेक्ट 10th कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया? क्योंकि जो बीच में जो 8th और 9th सम है वो आपको होमवर्क में करना है, इसलिए, बराबर। वो मैं आपको लास्ट में लिखवा देता हूँ, ओके स्टूडेंट्स? वो मैं लास्ट में आपको लिखवा देता हूँ। चलो तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले द गिवन इनइक्वालिटीज 5 into 2x minus 7 minus 3 into bracket 2x plus 3 less or equals to 0 and 2x plus 19 less or equals to 6x plus 47। चलो सबसे पहले 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स 10x माइनस 35। यहाँ पे -3 को अंदर -6x माइनस 9 लेस और इक्वल्स टू 0। सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे हम? एज इट इज लिख देते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे ऑपरेशन हम स्टार्ट कर ही देते हैं। कहाँ पे करेंगे हम? पहले राइट हैंड साइड करेंगे, मतलब -47 करते हैं। सो 2x माइनस 19 माइनस 47, सो वी गेट कितना मिलेगा? 47 में से 19 सब्सट्रैक्ट करो तो 17, दैट मीन्स 30 में से 2 दैट मीन्स -28 मिलेंगे, दिस वन इक्वल्स टू 6x। और यहाँ पे हमें नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा? तो 10 माइनस 6x दैट मीन्स 4x, और -35 माइनस 9 दैट मीन्स -44 दिस और इक्वल्स टू 0। समझ गए? गुड। सिमिलरली यहाँ पे क्या है आंसर? अभी हमें क्या करना है? सो -2x करना है ऑन बोथ द साइड। सो यहाँ पे -2x प्लस 2x कैंसल, सो वी गेट -28 दिस और इक्वल्स टू क्या आएगा? 4x। और यहाँ पे हमें क्या करना है? +44 करेंगे बोथ द साइड। सो यहाँ पे -45 प्लस 44 0, सो वी गेट 4x दिस और इक्वल्स टू 44। चलो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है? तो डिवाइडिंग बाई 4 करेंगे, तो 7 4 28 दैट मीन्स -7 दिस और इक्वल्स टू x। और यहाँ पे डिवाइड बाई सिमिलरली 4 करेंगे, सो यहाँ पे x दिस और इक्वल्स टू 11। इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा आंसर? x ग्रेटर इक्वल टू -7। चलो ये हो गया हमारा रिजल्ट नंबर 1, और ये हो गया हमारा रिजल्ट नंबर 2। चलो फ्रॉम रिजल्ट 1 and 2 we get, therefore from 1 and 2 we get, दोनों को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू -7 से बड़ी है, मैं -7 हूँ और मुझसे बड़ी है, मतलब पॉजिटिव साइड, और मेरे इक्वल भी है, -7 के इक्वल भी है क्योंकि स्लैक इनइक्वालिटी है इसलिए। और यहाँ पे x की वैल्यू 11 से छोटी है, बराबर। -7 यहाँ पे है और 11 सपोज यहाँ पे है, तो मुझसे छोटी है, मेरे इक्वल भी है और मुझसे छोटी वैल्यू है, मतलब स्मॉलर नंबर है,
मेरे से छोटी है, स्मॉलर नंबर है, और यहाँ पे -7 से लार्जर नंबर है। तो आपको पता तो चल गया हो कि आपके एक्स की वैल्यू -7 और यहाँ पे 11 दोनों के बीच में लाइज कर रही है। समझ में आ गया? सो वी गेट -7 लेस और इक्वल्स टू एक्स लेस और इक्वल्स टू 11। Therefore, for all x, where x belongs to capital R, the solution set is equals to curly bracket x, where -7 less or equals to x less or equals to 11 and x belongs to capital R. So the answer is close -7, 11 close. चलो समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ओके, चलो अभी इसको हमें नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। और स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि नंबर्स बहुत ज़्यादा आएंगे, बराबर ना? -7 और 11 के बीच में नंबर्स बहुत ज़्यादा आएंगे। तो हम क्या करेंगे, 2-3 नंबर बता देंगे और बीच में डॉट डॉट कर देते हैं। कैसे करेंगे आपको बताते हैं। ये हो गया हमारा नंबर लाइन, गॉट इट? समझ में आ गया? ओके, ये हो गया हमारा प्लस इन्फिनेटिव साइड और ये हो गया हमारा माइनस इन्फिनेटिव साइड। चलो उसके बीच में सबसे पहले हमारा क्या आएगा, 0 आएगा बीच में, सबसे बीच में। ओके, और यहाँ पे 1, यहाँ पे डॉट 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 करके हम क्या करेंगे, कौन सा नंबर है लार्जर नंबर, 10, 11 एंड 12। सिमिलरली यहाँ पे -1, फिर डॉट 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 यहाँ पे आएगा -7 एंड -8। समझ में आ गया स्टूडेंट्स क्या किया हमने? क्योंकि नंबर्स हमारे पास ज़्यादा है इसलिए। चलो अभी हम 2 सर्कल्स प्रोजेक्ट कर देंगे, एक -7 वाला और एक 11 वाला। चलो दूसरा काम भी हमारा कंप्लीट हो गया। अभी उसके बीच का जो सॉल्यूशन है वो हमें हाईलाइट करना है। सो कैसे करेंगे, सो ये हो गया आपका हाईलाइट, जो हमें उसके बीच में करना था वो। चलो ओके, अभी जो 2 सर्कल से वो हम फिल करेंगे या नहीं करेंगे, बोलो बोलो। यहाँ से एग्जैक्टली करेंगे, क्योंकि मैंने अभी बोला था कि -7 मेरे इक्वल भी है और मुझसे बड़ा, और 11 मतलब मेरे इक्वल और उससे छोटा, मतलब दोनों जो सर्कल है वो हम फिल कर देंगे। चलो हो गया। चलो यहाँ पे ऊपर हम लिख देते हैं हमारा आंसर। सो -7 लेस और इक्वल्स टू एक्स लेस और इक्वल्स टू 11। चलो समझ में आ गया स्टूडेंट्स? सबसे पहले 2 इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व किया, जो आंसर मिले उसको दोनों को मिक्स करके या मर्ज करके, और दोनों को जो भी हमारा था हमारे पास ऑपरेशन वो करने के बाद हमें डबल इनइक्वालिटी मिली। सिंगल इनइक्वालिटी, दोनों सिंगल इनइक्वालिटी को मर्ज करके हमें डबल इनइक्वालिटी मिली। क्या मिला, -7 और 11 के बीच में हमारे एक्स की वैल्यू मिली। ओके, और ये आंसर तो हमें लिखना था और उसका फाइनल आंसर हमारे नंबर लाइन पर। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ओके, गुड। चलो तो हमने जो 2 इनइक्वालिटी हमें देते हैं उसको सॉल्व करके हमें जो भी आंसर मिलता है उसको हमें नंबर लाइन पर ड्रॉ करने वाले। मैंने 2 सम आपको समझाए थे, और उसके अलावा हमारे पास कितने सम्स बाकी है देख लेता हूँ मैं। ओके, उसके अलावा हमारे पास 3 सम्स बाकी है। ये 2 हमारे एक्सरसाइज के जो मैंने बोले थे आपको होमवर्क में जाएंगे, और ये हमारे एक एग्जाम्पल 18 था, बराबर। चलो तो आपको समझ में आ गया होगा, तो ये आपको 2 होमवर्क में कंप्लीट करने हैं। ओके, चलो तो ये हमें लिख देता हूँ यहाँ पे होमवर्क। मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 का 8, मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 का 9 और एग्जाम्पल 18। ओके, एग्जाम्पल नंबर 18। चलो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रिक इनइक्वालिटी, यहाँ पे स्लैक इनइक्वालिटी है, बराबर। समझ में आ गया? वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा, बराबर ना? तो यहाँ पे सपोज कैसा मिल सकता है वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। सपोज के इसका आंसर x ग्रेटर देन 3 मिला, इसका आंसर x लेस और इक्वल्स टू -1 मिला, ऐसा समझ लेते हैं। सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -1 नहीं, यहाँ पे -1 ले लेते हैं, यहाँ पे 3 ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू -1 से बड़ी है और 3 से छोटी है, तो दोनों को मर्ज करेंगे तो -1 लेस देन x लेस और इक्वल्स टू 3 ऐसा मिलेगा, बराबर। समझाने के लिए मैं तो बाकी इसके जो भी आंसर है वही आपको लिखना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इसका जो सॉल्यूशन क्या आएगा, तो -1,3 क्लोज, -1,3 क्या आएगा, तो क्लोज आएगा। क्यों -1 ओपन लिया, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक इनइक्वालिटी और यहाँ पे 3 क्या है, तो स्लैक इनइक्वालिटी।
और जो आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो ये सपोज 3 का है और ये सपोज -1 का है, तो 3 का हम सर्कल फिल करेंगे। क्यों फिल करेंगे? क्योंकि यहाँ पे स्लैक इनइक्वालिटी है। पर ये -1 का सर्कल हम फिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीक इनइक्वालिटी है, इसलिए। तो आपका नंबर ऐसा कुछ दिखेगा और बीच में जो भी हमारा सॉल्यूशन है वो। ओके, सो ये आपको तीनों के तीनों कंप्लीट करने हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा टाइप नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। अभी हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, तो ग्राफ वाले सम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट टाइप नंबर थी हमारे ग्राफ में, मतलब जो हमारा ग्राफ होगा बराबर, उस पर हम XY प्लेन वाला ग्राफ, XY प्लेन, समझ में आ रहा? ओके, सो आपको ग्राफ रेडी रखनी है। नेक्स्ट टाइम आप सबको ग्राफ परचेज करनी है, बराबर। बाहर स्टेशनरी शॉप में आपको ग्राफ मिलेगा। ओके, सो आप नेक्स्ट टाइम ग्राफ रेडी रखना। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं स्टूडेंट्स, ये सब कंप्लीट कर देना। ओके, गुड। एंड हाँ, इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट्स, अगर आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पसंद आ रहा है, इफ़ यू लाइक माई वीडियोस, व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, व्हाट आई एम टीचिंग यू, देन जो आपकी इच्छा हो तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियोस, बराबर, और शेयर भी कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो। ओके, थैंक यू।